ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا ومرسلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم محترم سامعین کرام، میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. دعا ہے رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ میں کہ رب کائنات، خالق دو جہاں، مالک ارض و سما، مالک کون و مکان، مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے سمجھنے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین کرام، پورے ربیع الاول کے مہینے کے اندر آپ نے سنا رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، ان کا بچپنا، ان کا لڑکپن، ان کی جوانی، ان کا نکاح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3 باتیں یاد کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی سے آنے سے پہلے، اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے زمانہ کیسا تھا، اللہ کے نبی آئے زمانہ کیسا ہوا، اور نمبر 3 جب نبی دنیا سے گئے تو ہمیں کیا دے کر گئے. یہ 3 چیزیں جسے یاد ہو گئی گویا اسے کائنات کا علم یاد ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لے کر آئے تو کائنات کے اندر نظام کیسا تھا، قانون کیسا تھا، اخلاق کیسے تھے، رویہ کیسا تھا، تعلق کیسا تھا، رشتہ داری کیسی تھی، لوگوں کے ساتھ میل جول کیسا تھا، لوگوں کے عقائد کیا تھے، عبادات کیا کرتے تھے، اللہ کو کیسے مانتے تھے، کس نظریے کے ساتھ اللہ کو مانتے اور جانتے تھے. یہ انسان کو کم از کم پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ کے نبی سے پہلے زمانہ کیسا تھا، جہاں پر کفر و شرک عام تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے
اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے یہ 570 سال کا عرصہ، فرمایا ہر طرف ظلم و ستم عام تھا، کفر و شرک عام تھا۔ یہی عیسائی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ 2 معبود اور مانتے تھے، 2 خدا اور مانتے تھے۔ اللہ کی ذات کو بھی اللہ مانتے، مریم کو بھی الہ مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی الہ مانتے تھے۔ وہی یہودی تھے جو ایک وقت میں پکے مسلمان تھے، جن کے لیے اللہ کی مدد اور نصرت آیا کرتی تھی، من اور سلوہ جیسا کھانا اترا کرتا تھا، لیکن وہی یہودی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جن کا مذہب سچا مذہب تھا، تورات صاحب کتاب جنہیں کتاب اللہ شمار ہوتی تھی، اللہ کی کتاب سمجھی جاتی تھی، پڑھنا ثواب سمجھا جاتا تھا، عمل کرنے سے ثواب ملتا تھا، لیکن وہی یہودی ہے اللہ کو بھی الہ مانتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی الہ مانتے تھے۔ یہ تو ان لوگوں کا ہے جو ایک پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک شریعت کو ماننے والے، ایک کتاب کو ماننے والے۔ ادھر تو وہ ہے، مکہ کے اندر تو وہ ہے جو کتاب کو بھی نہیں مانتے تھے، شریعت کو نہیں مانتے تھے، پیغمبروں کو نہیں مانتے تھے، رسولوں کو نہیں مانتے تھے، صرف اور صرف اپنے بتوں کو مانتے تھے۔ 360 بت رکھے ہیں، بارش دینے والا الگ ہے، صحت دینے والا الگ ہے، اولاد دینے والا الگ ہے، رزق دینے والا الگ ہے، تندرستی دینے والا الگ ہے۔ الغرض کی ہر ایک نعمت کے لیے الگ الگ خدا بنائے ہوئے ہیں، الگ الگ خدا بنے ہوئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا ہے کہ جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، جو الہ العالمین کو نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے ان کا رواج کیا تھا، ان کا طور طریقہ کیا تھا، ان کی رسم و رواج کیا تھی، ان کی عبادات کیا تھی، ان کا رہن سہن کیا تھا، ان کا میل جول کیا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کیا تھا۔ رشتہ داری تو بہت دور کی بات ہے، ماں جیسی ہستی کائنات کے اندر اللہ پاک اپنی محبت کی مثال دیتا ہے تو ماں کے ذریعے سے دیتا ہے۔ عرب والوں کے ہاں ماں کا رواج کیا تھا؟ باپ مر گیا، اگر 5 بیٹے ہیں، اب 5 بیٹے اپنی ماں کو بلا کر کہتے ہیں باپ تو دنیا سے چلا گیا، باپ کی وراثت تقسیم کرنی ہے، مال تقسیم ہو گیا، کہ اب ماں کو بھی تقسیم کرو۔ وہی بیٹے، اسی باپ کی اولاد، اسی ماں کی اولاد، لیکن اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں۔ جس طرح مال تقسیم ہو رہا ہے، ماں کو بھی تقسیم کرو۔ یہ ماں کا حال تھا کائنات میں، جو رشتہ داروں میں سب سے قریبی رشتہ ہے، سب سے زیادہ محبت والا رشتہ ہے۔ تو اللہ کے نبی سے آنے سے پہلے ماں کا یہ مقام تھا کہ ماں کو ماں کا درجہ ہی نہیں دیا جاتا تھا، ماں کو ماں نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی آئے تو ماں کا مقام بتایا کہ لوگوں، ماں کو کوئی عام ہستی نہ سمجھو، اللہ نے جو جنت ہمارے اعمال کے اوپر، نماز روزے کے اوپر، زکوٰۃ حج کے اوپر بنائی ہے، جو جنت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اس جنت کو اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ تو لوگوں کے اندر ظلم و ستم عام تھا، ایک ایک پیالے کے پانی کے اوپر لڑائی ہوتی تھی۔ جب لڑائی شروع ہوتی عرصے دراز تک لڑائی چلتی تھی، عرصے دراز تک کفر جناح قتل و غارت عام رہتی تھی۔ کس نے میرے جانوروں سے پہلے جانوروں کو پانی کیوں پلایا؟ یہ غلام ہے تو غلام نے آقا سے آگے قدم کیسے رکھ دیا؟ یہ غلام ہے تو اس نے آقا کے برتن میں کھانا کیوں کھایا؟ یہ ظلم تھا کہ قتل کو قتل ہی نہیں سمجھتے تھے۔ جانور جا رہا ہے، اب شرط لگا دی کہ بتاؤ تو صحیح اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مادہ ہے یا نر ہے۔ شرط لگ گئی، اب اس کے پیٹ کو چاک کرتے تھے تو دیکھ لیتے تھے۔ یہ ظلم و ستم عام تھا۔ جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ہر طرف ظلم کا بسیرا تھا، کفر عام تھا،
कुफर इतना था कि बैतुल्लाह के अंदर जो अल्लाह के नाम पर घर बनाया, बैतुल्लाह बनाया, पैगंबर ने बनाया, फरिश्तों ने दिखलाया, पैगंबर ने जाकर बनाया, उसी घर के अंदर नंगा तवाफ किया करते थे। उस घर को कोई आम घर की तरह समझते थे। ये भी बैतुल्लाह है जहां पर अल्लाह की इबादत होनी थी। अल्लाह ने फरमाया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने दुआ की कि अल्लाह मैंने बैतुल्लाह बना दिया, अब इबादत करने वाला भी तो भेज दे। तो ये बैतुल्लाह तो अल्लाह की इबादत के लिए, रसूलुल्लाह के लिए बनाया था, लेकिन उसी बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत रखे हुए हैं। जहां पर जाओ तो हर परेशानी दूर, लेकिन जाकर वहां पर देखा तो वहां पर लात पड़ा है, वहां पर उज्जा पड़ा है, वहां पर मनात पड़ा है, वहां पर हुबल पड़ा है, वहां पर अंबिया के मुजस्मे बनाए हुए हैं। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले था कि जहां पर जर्रा बराबर इंसानियत नहीं थी, जहां पर इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, बस अना परस्ती थी, मैं थी कि बस मेरी बात मानी जाए, बुकाया सारे दुनिया से चले जाए। तो अल्लाह के नबी आए तो इस अना परस्ती को खत्म किया, इस जुल्म सितम को खत्म किया, इस कुफ्र और शिरक को खत्म किया। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वक़्त के इमाम गुजरे हैं, जिनकी तरफ से के ऊपर आज हम जो है ना नमाज हनफी पढ़ते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है। वक़्त के बादशाह के सामने एक आदमी आकर खड़ा होकर कहता है कि वक़्त के बादशाह, मैं इलाह को नहीं मानता, अल्लाह की जात को नहीं मानता, मेरी ये दलील है, ये दलील है। वक़्त के बादशाह चाहता तो कत्ल करवा सकता था, लेकिन हमारे नबी का दीन है जो दलाइल की दुनिया पर खड़ा है, जो अल्लाह ने कुरान के जरिए से भेजा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जरिए से दिया है, जो फरिश्ते अमीन के जरिए से भेजा है। तो फरमाए ये दलाइल की दुनिया पर खड़ा है, ये इमारत रेत के ऊपर नहीं खड़ी, बल्कि ये अंबिया अलैहिस्सलाम के कंधों पर ये नबुव्वत वाली दीवार खड़ी है। अब वक़्त के बादशाह ने कहा कि जाओ इमाम आज़म अबू हनीफा को बुलाओ। बुलाने के लिए चले गए, वक़्त के इमाम को बुलाने के लिए, जोहर के वक़्त बुलाने के लिए गए। अब जोहर का वक़्त भी गुजर गया, असर की नमाज का वक़्त आया, वक़्त के इमाम ना आया, मगरिब का नमाज का वक़्त भी चला गया, लेकिन वक़्त के इमाम ना आया, इशा की नमाज का वक़्त भी चला गया। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम आज़म अबू हनीफा आ गए। वक़्त के बादशाह को गुस्सा आया, क्या तुझे मालूम है कि सामने एक ऐसा आदमी खड़ा जो अल्लाह की जात का इनकार कर रहा है, जो अल्लाह की जात को नहीं मान रहा। वो कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कायनात नहीं बनाई, बस वैसे ही बन गई है। इंसान ने पैदा होना था, पैदा हो गया, वक़्त पूरा करके दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। तो इसे जवाब देना था, दलील देनी थी, नबी का फरमान सुनाना था, अल्लाह का कुरान बताना था, लेकिन तू इतनी देर से आया है। अब इमाम आज़म अबू हनीफा अपने जवाब के अंदर वक़्त के बादशाह को जो जवाब दे रहे, उसी के अंदर अल्लाह के होने की दलील भी दे रहा है। कहते वक़्त के बादशाह, आपका पैगाम तो मिला था, जोहर का वक़्त था, लेकिन जब मैं आपके पास आ रहा था, बीच में एक नहर चल रही है, आपके और मेरे बीच में एक दरिया है, नहर है, उसे क्रॉस करने के लिए मुझे कश्ती का सहारा लेना पड़ता है। जब मैं नहर के दहाने के ऊपर आया तो कोई कश्ती नहीं खड़ी थी, कोई मल्लाह नहीं था। मैं इंतजार में खड़ा रहा, यहां तक कि जोहर का वक़्त चला गया, असर का वक़्त आ गया, कोई कश्ती, कोई मल्लाह ना आया, असर भी चली गई, मगरिब भी ये चली गई, इशा के वक़्त तक जो मैं इंतजार करता रहा, कोई कश्ती ना आई, कोई मल्लाह ना आया। मैं दरिया को, नहर को क्रॉस करूं तो कैसे करूं? ऐसी दौरान में बैठा हुआ था कि अचानक वहां पर एक दरख्त था, खुद ही फटता है, उसके अंदर से फटे निकलते हैं, कश्ती बनने लग जाती है, खुद ही फटे जुड़ने लग जाते हैं। मैं बड़ा परेशान हुआ। तो वो जो अल्लाह की जात को नहीं मान रहा था, जो अल्लाह की जात के इनकार कर रहा था, भला ऐसे भी हो सकता है कि खुद ही दरख्त जो है चिर जाए, उसके अंदर से फटे निकले और खुद ही जुड़कर कश्ती तैयार हो जाए? ये मेरी अकल नहीं मानती।
इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मैं यही तो तुझे समझा रहा था, जो एक छोटी सी कश्ती खुद तैयार नहीं हो सकती तो इतना बड़ा जहान, इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी दुनिया कैसे बगैर अल्लाह की जात के तैयार हो सकती है। मुफ्ती हसन साहब जिन्हें एक मिसाल देते हैं अल्लाह के होने के ऊपर, कहा कि जिन्हें एक बूढ़ी अम्मा से पूछा कि अल्लाह के होने की दलील तो बतला, कहा ये जो चरखा में जिससे पानी निकालती हूँ ये मुझे अल्लाह के होने की दलील देता है। कहा वो कैसे? कहा जब मैं इसको चलाती हूँ तो ये चलता है, जब मैं नहीं चलाती तो ये रुक जाता है। तो ये कायनात भी ऐसे, ये गोया कि इसको चलाने वाला कोई है, इसे संभालने वाला कोई है। जब मेरी ताकत के बगैर चरखा नहीं चल सकता तो ये कायनात चलाने वाले की मर्जी के बगैर कैसे चल सकता है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले कायनात के अंदर अल्लाह के नाम का तसव्वुर भी नहीं था, अल्लाह की जात को नहीं मानते थे। मुअर्रिखीन ने लिखा है सांप को खुदा मान लेते थे, इसके अंदर डसने की, मारने की ताकत है, लेकिन अल्लाह की जात को इलाह नहीं मानते थे। बिच्छू को अल्लाह कह देते थे, यहां तक कि चांद और सूरज की पूजा करते, इसे भी अपना इलाह मानते थे, लेकिन इलाहुल आलमीन को अल्लाह कहने के लिए तैयार नहीं थे कि हम अल्लाह को कैसे मान ले कि अल्लाह की जात हमारी निगाहों के सामने नहीं, हमारे ऊपर दस्ते कुदरत जिसकी नहीं है। ये जो न सूरज है जो हमें रोशनी भी देता है, जो न ये चांद है चांदनी देता है, ये सितारे हैं हमें रास्ता दिखलाते हैं, अल्लाह की जात हमारे लिए क्या करती है? तो अल्लाह के नाम का तसव्वुर नहीं था। अल्लाह के नबी आए, दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर आए तो वही लोग थे, वही जुल्म और सितम था, वही कुफ्र और शिरक था। जब रहमत बनकर आए तो अल्लाह के होने की दलील भी दी, अल्लाह के बारे में बतलाया। फिर ऐसा बतलाया कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की जब जमात उन्हीं में से तैयार की, उन्हीं काफिरों में से निकाले, बदर के मैदान के अंदर अल्लाह के नबी खड़े हैं, रात का वक्त है, एक टीले के ऊपर सर सजदे के अंदर रखकर दुआ करके कह रहे हैं कि रब्बा मैंने इनको लात और उज़्ज़ा के पुजारियों से निकाल कर लाया हूं, मक्का की गलियों से निकाल कर लाया हो, कुफ्र और शिरक से निकाल कर लाया हो, मजूसियों के अंदर से निकाल कर लाया हूं। रब्बा मेरी मेहनत को जाया ना करना, रब्बा मेरी मेहनत को जाया ना करना। तो ये सहाबाए किराम इन्हीं में से आए थे, अल्लाह पाक ने इन्हीं में से इनके ईमान को कबूल किया, इनकी मेहनत को कबूल किया। फिर यही सहाबाए किराम थे, मक्का की गलियों में चलते थे, आवाज जन्नत से आया करती थी, आवाज जन्नत से आया करती थी। तो सहाबाए किराम ने अल्लाह के होने के बारे में जब इबादत अल्लाह की करते थे तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का अकीदा इतना मजबूत हो गया कि अल्लाह के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, कहते हैं कि हम एक गज़वे से आ रहे थे, अब रास्ते के अंदर हमने एक जगह के ऊपर पड़ाव डाला, साथ ही एक बस्ती थी, हमें भूख लगी हुई थी, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हमने आपस में मशवरा किया कि जाकर इस बस्ती वालों से कुछ बकरियां वगैरह ले लेते हैं, उसे ज़िबा करेंगे और खाएंगे। अब बस्ती वालों को पता चल गया कि ये तो मुसाफिर हैं, ये तो हमारी बकरियों को छीन कर लेकर चले जाएंगे, ज़िबा करेंगे। अब सहाबाए किराम का तो ये था कि हम उजरत पर लेंगे, जाकर लेकर ज़िबा करके खाएंगे, लेकिन उनके दिल में ये था कि ये तो जो ना गसब करके, जो ना ताकत के जोर के ऊपर, तलवार के जोर के ऊपर लेकर जाएंगे। अब सहाबाए किराम जैसे ही वहां पर गए तो बस्ती वालों ने अपनी बकरियों को जाकर जंगल में छुपा लिया, अपने रेवड़ सारे जानवरों को छुपा लिया। अब सहाबाए किराम जैसे ही गए तो बस्ती वालों से कहा कोई बकरी कोई जानवर हो हमें दे दो, हमने ज़िबा करना है, उसकी उजरत ले लो, कैश पैसे ले लो, कीमत ले लो। बस्ती वालों ने कहा हमारे पास तो जानवर ही नहीं है, कोई है ही नहीं, हम बेचे कहां से, कीमत कैसे ले जब जानवर ही नहीं है। सहाबाए किराम मायूस होकर जैसे ही कदम वापस उठाए तो जंगल के अंदर से आवाज आ गई, जानवर आवाज दे रहे, हा होना नहनु, ए नबी के गुलामों हम जंगल के अंदर है, आओ हमें लेकर जाओ, हमें काटो, हमें ज़िबा करो और हमें पका कर खाओ, अगर तुम नबी के गुलाम हो तो हम तुम्हारे गुलाम हैं। ये नबी की मेहनत थी। वही मक्का वाले थे जहां पर इंसानियत का नाम नहीं था,
अल्लाह के नबी ने मेहनत की तो जानवर भी गुलाम बनकर सामने खड़े। हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हा सहाबी रसूल है, नाम तो इनका कुछ और था। अल्लाह के नबी ने देखा वजन बहुत उठाते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया तू तो सफीना है, यानी कश्ती है, इतना वजन उठाता है। हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं मैं एक मर्तबा बसरा से मदीना जा रहा था, रस्ते में जंगल पड़ रहा था। जैसे ही जंगल के मैं करीब गया तो सामने शेर खड़ा था। अगर रास्ता बदलता हूं तो जो है कैसे मैं मदीना पहुंचूंगा। अब मैं इंतजार के अंदर खड़ा हो गया, कब ये शेर जाएगा, ये चीता कब रास्ते से हटेगा और मैं मदीना के रास्ते के ऊपर चलूंगा। देखा एक दिन गुजर गया, शेर जना हटने का नाम नहीं ले रहा, चीता हटने का नाम नहीं ले रहा। मैंने जना फौरन कहा कि शेर हट जा, तुझे मालूम नहीं मैं नबी का गुलाम हूं, मैंने नबी का कलमा पढ़ा है, मैंने नबी के पीछे नमाजें पढ़ी है, मेरा रास्ता छोड़ दे। वो शेर जो ना बड़बड़ाने लग गया और सामने आकर बैठ गया। हजरत सफीना कहते मैं ऊपर सवार हुआ, मुझे मदीना तक जाकर छोड़ कर आया। अल्लाह के नबी के सामने में गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सफीना जब वो शेर तेरे सामने बैठ रहा था वो कुछ बड़बड़ा रहा था, क्या बड़बड़ा रहा था? अल्लाह के नबी मुझे उसकी जबान का क्या पता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो कह रहा था अगर तू नबी का गुलाम है तो मैं तेरा गुलाम हूं, अगर तू नबी का गुलाम है तो मैं तेरा गुलाम हूं। तो मेरे भाइयों ये है नबी की मेहनत। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन आगे जिन्ना अफ्रीका के जंगल के अंदर है, सबको पता है कि यहाँ पर सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं, चीर फाड़ करने वाले जानवर भी हैं। अगर हमने यहाँ पर रात गुजारी सुबह तक जिंदा कोई भी नहीं रहेगा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने पड़ाव डाल दिया और जो ना ऐलान करके कहा कि सांप तू भी सुन ले, बिच्छू है तू भी सुन ले, चीता है तू भी सुन ले, हाथी है तू भी सुन ले, हम यहाँ पर नबी के गुलामों ने 3 दिन रहना है। 3 दिनों तक इस जंगल को खाली कर दो और तुम्हें जो ना 3 दिन का वक्त है, अगर खाली ना किया तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन कहते कि हमने देखा इधर से चीता जा रहा है जंगल छोड़कर, इधर से शेर जा रहा है, हाथी जा रहा है रास्ता छोड़कर। क्यों? क्योंकि नबी के गुलामों की आवाज जो कानों के अंदर लग गई है, अगर तुम नबी के गुलाम हो तो हम तुम्हारे गुलाम हैं। ये नबी की मेहनत थी। जहां पर इंसानियत का नाम नहीं था, नबी आए तो जानवरों के दिल में भी नबी की मोहब्बत को डाल दिया, कलमे वाले की मोहब्बत को डाल दिया है। तो ये है हमारे नबी के आने से पहले जमाना कैसा था, हमारे नबी के बाद जमाना कैसा हुआ। जहां पर एक प्याले के पानी के ऊपर लड़ाई होती थी। फज़ाइल अमाल के अंदर एक हदीस लिखी है, एक सहाबी रसूल कहते हैं मैं अपने चचा की तलाश के अंदर निकला कि जनाब वो मुझे कहाँ मिलेंगे, गज़वे के अंदर हैं। मैं जाकर पहले शुहदा के अंदर तलाश करता रहा, मुझे ना मिला। फिर मैं जख्मियों के अंदर गया तो देखा बिल्कुल जख्मों से चूर पड़े थे। जहां पर एक पानी प्याले के पानी के ऊपर लड़ाई हो रही है, उसके बदले में अल्लाह के नबी की मेहनत है। वो सहाबी रसूल कहते मैंने जैसे अपने चचा को देखा तो आखिरी सांसें चल रही थी। मैंने पूछा क्या बात है? कहा पानी पिला दे, पानी पिला दे। कहा जैसे ही मैंने मिशकीजे का मुंह खोला, मुंह के साथ पानी लगाने लगा, पीछे से दूसरे की आवाज आई कि एक पानी पिला दो, एक गिलास पानी पिला दो। उसने मिशकीजे के आगे हाथ रखा, कहा जाओ पहले उसको पानी पिलाओ, मेरी जान जाती है तो चली जाए, पहले उसको पानी पिला करो। का पानी उसको पिलाने के लिए चला गया। जैसे ही मिशकीजे का मुंह उसके साथ लगा तो पीछे से तीसरे की आवाज आई कि मुझे पानी पिलाओ। का जैसे ही मैं तीसरे के पास गया तो वो दुनिया को छोड़कर जा चुका था। मैं जल्दी से दूसरे के पास आया, दूसरा भी प्यास की हालत में दुनिया को छोड़कर जा चुका था। जल्दी जल्दी मैं अपने चचा के पास आया तो चचा भी प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त न कर सका और दुनिया को छोड़कर चला गया। ये मेरे नबी की मेहनत थी। जब दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी आए नहीं थे तो ये हालत थी कि कोई जानवरों को अगर पहले पानी पिलाए तो लड़ाई शुरू हो जाती थी। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने मेहनत की तो खुद तो प्यासा रहना बर्दाश्त कर लिया, लेकिन दूसरे को पानी पिलाने के ऊपर तरजीह दे दिए। ये मेरे नबी की मेहनत है। तो हमारे ऊपर भी नबी की मेहनत है या नहीं है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले कोई आदमी जो ना जुल्म को जुल्म समझते नहीं था, कत्ल को ऐसे समझता था जिस तरह हम जो है आज छिपकली देखी तो मार दी, हम कहते हमें सवाब मिल गया।
70 नेकियां मिल गई। इसी तरह पहले इंसान को मारना भी वो सवाब ही समझते थे। अल्लाह के नबी ने आकर इंसान की कदर व मंजिलत बनाई कि एक इंसान को नाजायज तरीके से कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक इंसान के ऊपर जुल्म और सितम करना गोया पूरी इंसानियत के ऊपर जुल्म और सितम है। एक इंसान के माल को गस्ब करना गोया कि अल्लाह के साथ ऐलान जंग करना है। ये हमारे नबी ने आकर मेहनत करके बतलाई। सहाबा इकराम ने ताबीन को बताई, ताबीन ने तबा ताबीन को, चलते चलते आज तक ये नबी की मेहनत चल रही है। लेकिन हमारे अंदर से वो नबी वाली मेहनत निकल गई है। हमारे अंदर तो वही तर्ज अमल आ गया जो नबी के आने से पहले का जमाना था, जो अल्लाह के नबी की मेहनत से पहले का जमाना था। आज हमारी जिंदगी वैसे बन गई है। क्यों? हमारे लिए नबी रहमत बन कर नहीं आए थे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नबी तो जहान वालों के लिए रहमत बन कर आए थे। एक हिंदू ने इतराज किया, मुसलमान कहते हैं ये हमारा नबी है, ये हमारा नबी है, हमारे लिए रहमत बन कर आया। उस हिंदू ने कहा जितना नबी तुम्हारा है उतना नबी हमारा भी है, जितना तुम्हारा हक है उतना ही उस नबी के ऊपर हमारा भी हक है। तो नबी तो हमारे लिए भी रहमत बन कर आए थे। तो हमें भी कम से कम ये सोचना चाहिए कि यार नबी के आने से पहले जुल्म और सितम आम था, कुफ्र और शिरक आम था, माँ को माँ का मकाम नहीं मिलता था, बेटी को जिंदा दरगोर कर देते थे, जहां पर बहन का हिस्सा कोई देने के लिए तैयार नहीं होता था। तो बताओ आज वही हाल है कि नहीं है? कि परसों का वाकया है, बेटे ने माल के लिए, विरासत के लिए अपनी माँ की गर्दन को उड़ा दिया। तो बताओ जहां पर लोग पहले अरब के लोग जो है, पहले मक्का के लोग जो है अपनी माँ के साथ ज़िना करते थे, आज वो अपनी माँ को कत्ल कर देते हैं। जहां पर पहले अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे, आज वहां पर जो है हम बेटियों को माल न देकर, उनकी जायदाद का हिस्सा न देकर जिंदा दरगोर कर रहे। यानी हमारे अंदर वही औसाफ है, हमारी सिफत वही है जो पहले वालों की थी। वह कि हमने नबी को नबी नहीं समझा, नबी की मेहनत को मेहनत न समझा, कुरान को कुरान न समझा, नबी के फरामीन को फरामीन न समझा। आज अगर हम जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, अगर कोई आकर हमें हदीस बतला दे तो हदीस तो दरकिनार बताने वाले को भी हम काफिर कह देते हैं कि ये हमें बतलाएगा नबी का फरमान। क्या जो मैं कर रहा हूं ये गलत है? जो ये मैं बतला रहा हूं ये गलत है? तो मेरे भाइयों हमारी सिफात जो है बेआईनी ही वैसे बन गई हैं जैसे नबी के आने से पहले का जमाना था। तो हमें अपने अखलाक को बदलना पड़ेगा, अपने रवैयों को बदलना पड़ेगा, अपने कारनामों को बदलना पड़ेगा, अपने हमसायों के जो हुकूक है उनको बदलना पड़ेगा। अब बताओ कि कोई भाई भाई के साथ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो मक्का के अंदर कोई भाईचारगी नहीं थी। नबी के आने से पहले कोई जिन रिश्ते नाते को समझता ही नहीं था कि ये मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा पड़ोसी है। आज भी बेआईनी ही वही है कि बड़ा भाई छोटे भाई के साथ जब बोलने के लिए तैयार नहीं है, जैसी सी छोटी सी गलती हो गई फिर मुलाकात जनाजों के ऊपर होती है कि एक मर्तबा चेहरा दिखला दे, मना कर लेकर आ रहे, शादी के लिए गए बुला कर लेकर आ रहे, मना कर लेकर आ रहे। क्यों? ये खून का रिश्ता बिल्कुल पानी हो चुका है। इस खून के रिश्ते के अंदर इतनी भी तासीर नबुव्वत वाली ना रही, कुरान वाली इतनी भी तासीर बाकी ना रही कि यार हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली के दूसरे बेटे मोहम्मद बिन हनफिया, ये दो सहाबा हैं, हजरत अली की दोनों औलाद हैं, दोनों बेटे मोहम्मद बिन हनफिया और हजरत हुसैन, ये दोनों भाई हैं आपस में, लेकिन माँ इनकी अलग है। एक की फातिमा है, दूसरी की हनफिया है। इनके आपस में थोड़ी सी रंजिश हो गई, थोड़ी सी जो ना लड़ाई सी हो गई, थोड़ी सी घर के अंदर इख्तिलाफ हो गया, बोल चाल बंद हो गई। तीसरा दिन है, मोहम्मद बिन हनफिया अपने भाई को मनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही जाने लगे वापस लौट कर आ गए। पूछा क्या हुआ? कहा नबी का फरमान याद आ गया। कहा जो आदमी मनाने के अंदर पहल करेगा, अल्लाह पाक का वादा है मैं उसे बगैर हिसाब किताब के 70,000 आदमियों में शामिल करके जन्नत में दाखिल करूंगा। अपने भाई को खत लिखा, कहा भाई हसन, भाई हुसैन,
मैं तो तुझे मनाने के लिए आ रहा था, मैं माफी मांगने के लिए आ रहा था, मैं तो तुझे राजी करने के लिए आ रहा था, लेकिन रास्ते के अंदर आते आते नाने का फरमान याद आ गया, अगर तू आ जाए मनाने के लिए, अगर तू आ जाए मुझसे पहल करने के लिए, ये सारे सवाब का हकदार तू बन जाएगा। सिर्फ सवाब के लिए पहल ना की कि अपने भाई को कहा कि ये सवाब तेरे हक के अंदर आ जाए। कल क़यामत के दिन जो है ऐसा ना हो कि जना हमारा नाना, आपका नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुझे पकड़ करके है कि बता तो सही, जब तेरे जिन्ना दिलो दिमाग के अंदर मेरा फरमान था तो तू मेरे हुसैन को क्यों याद ना दिला सका। कहीं ऐसा ना हो कि हजरत हुसैन की वजह से कल क़यामत के दिन मेरी पकड़ हो। तो मेरे भाइयों, अगर कहीं पर रंजिश हो, कहीं पर नाराजगियां हो, फरमाया वो एक मर्तबा एक मुस्कुराहट से खत्म हो सकती है, लेकिन याद रखना अगर ऐसे ही चले गए, नाराजगी की हालत में चले गए, फरमाया आखिरत की गाड़ियां बहुत सख्त है, आखिरत की घाटियां बहुत सख्त है, कब्र का अजाब बड़ा सख्त है। तो हमारे हालात आज वैसे ही हैं, बेआईनी ही वैसे हैं जो अल्लाह के नबी के आने से पहले हुआ करते थे। अल्लाह के नबी आए तो हालात बदले हैं, अल्लाह के नबी आए तो कुफर खत्म हुआ है, जुल्म खत्म हुआ है, अंधेरा खत्म हो गया, उजाला बनकर आए थे, रोशनी बनकर आए थे, रहमत बनकर आए थे। लेकिन आज हमें अपनी जिंदगी में वो वाली रहमत नजर नहीं आती। तो अल्लाह के नबी आए तो तीन काम हैं। अल्लाह के नबी के आने से पहले जमाना कैसा था, अल्लाह के नबी आए फिर जमाना कैसा हुआ, जब नबी दुनिया से गए हैं तो हमें क्या देकर गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं कुरान और सुन्नत तुम्हें देकर जा रहा हूं। ये दो चीजें हैं, लेकिन हमने कुरान को भी छोड़ दिया, सुन्नत को भी छोड़ दिया। आप देख लो, कहीं पर पंचायत बैठ जाए, लड़ाई झगड़े का फैसला होने लग जाए, एकदम कसम की तरफ दौड़ते हैं, कुरान के ऊपर हाथ उठाने की तरफ दौड़ते हैं। अरे जिस कुरान के ऊपर हाथ रखते हुए तुम अपने आप को सच्चा बरकरार करने के लिए, सच्चा होने के लिए साबित कर रहे हो, तो उस कुरान को पढ़कर भी तो अपने आप को सच्चा कहो ना। उस कुरान के ऊपर अमल करके भी तो बतलाओ कि मैं इस कुरान के ऊपर अमल करने वाला। अमल हमारे कुरान के खिलाफ, जबान हमारी कुरान के खिलाफ, अखलाक हमारे कुरान के खिलाफ, रवैया हमारा कुरान के खिलाफ, और हम कुरान के ऊपर जाकर कसम खाने के लिए तैयार हैं। तो वो पंचायत वाले भी कसम खाने के लिए फौरन तैयार हो जाते। तो मेरे भाइयों, हमें ये तीन चीजें सोचनी चाहिए कि मेरी जिंदगी के अंदर वो तीनों चीजें हैं या नहीं है। कि नबी के आने से पहले जमाना कैसा था, नबी दुनिया से गए फिर जमाना कैसा था, जब दुनिया से नबी करीम गए हैं तो हमें क्या देकर गए हैं, वो चीजें मेरे पास हैं या नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।